परमवीर चक्र गाथा, साहस और बलिदान की कहानी गाथा की जुबानी। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम आपको भारतीय सेना के ऐसे रणबांकुरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर दुश्मनों से जमकर लोहा लिया। उन जांबाज सैनिकों ने अपने पराक्रम के इस दम पर न केवल दुश्मनों के छक्के छुड़ाए बल्कि उन सब हाथों को उखाड़ फेंका जो भारत माता की ओर उठे थे। एक सच्चा भारतीय होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम उनके बारे में जानें और अपने दोस्तों को भी बताएं। In this podcast, we explore the stories of extraordinary courage and bravery of Paramveer Chakra awardees. The Indian peacekeeping force, that is IPKF, was sent by India to Sri Lanka between 1987 and 1990 with primary objective to resolve the ethnic conflict between the Sri Lankan government and the Liberation Tigers of Tamil Eelam, that is LTTE, a separatist militant organization. Major Ramaswamy Parameswaran was posthumously awarded the Paramveer Chakra, India's highest military decoration for valor, for his exceptional bravery and leadership during the Indian peacekeeping force operations in Sri Lanka. Major Ramaswamy Parameswaran's battalion, 8 Mahar, took part in Operation Pavan as part of 19 Infantry Brigade and 54 Infantry Division. They were tasked to oversee the implementation of Indo-Sri Lanka Accord signed on 29 July 1987. The battalion was the first unit to have landed in Sri Lanka as part of the IPKF. The militants were expected to surrender after the arrival of Indian forces, but the dreaded LTTE pulled out and started waging war on them. The battalion engaged in several actions against the LTTE while deployed in Sri Lanka, and major ones being at Maruthanamadam, Annai Kotai Manipai and Kantarodai. It was at Kantarodai where Major Parameswaran fought his gallant action. On 25th November 1987, when Major Ramaswamy Parameswaran was returning from search operation in Sri Lanka late at night, his column was ambushed by a group of militants. With cool presence of mind, he encircled the militants from the rear and charged into them, taking them completely by surprise. During the hand-to-hand combat, a militant shot him in the chest. Undaunted, Major Parameswaran snatched the rifle from the militant and shot him dead. Gravely wounded, he continued to give orders and inspired his command till he breathed his last. 5 militants were killed and 3 rifles and 2 rocket launchers were recovered and the ambush was cleared. Major Ramaswamy Parameswaran displayed the most conspicuous gallantry and thought nothing of dying at his post. For his cold courage, indomitable fighting spirit and supreme sacrifice, Major Ramaswamy Parameswaran was given the highest gallantry award, Paramveer Chakra, he being the only one to receive during Operation Pavan, the IPKF in Sri Lanka. Hello friends, I am Gatha Vaibhav Dikshit. Welcome to my podcast. परमवीर चक्र गाथा, साहस और बलिदान की कहानी गाथा की जुबानी। इस एपिसोड में हम मेजर रामास्वामी परमेश्वरन परमवीर चक्र के बारे में जानेंगे, जिन्हें श्रीलंका में IPKF के ऑपरेशंस के दौरान वीरगति प्राप्त हुई। उस ऑपरेशन में जो मेजर परमेश्वरन के रेडियो ऑपरेटर थे, वे सूबेदार दिलीप मस्के mentioned in dispatches से बात करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दिलीप जी, मेरे पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। दिलीप जी, अपने देश से बाहर जाकर अनजान देश में लड़ना अपने आप में ही एक चुनौती है। उस समय आप केवल एक सैनिक होंगे। कैसा रहा आपका अनुभव? इस मूवमेंट के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की थी? वहां पहुंचने के बाद क्या हालात थे? मैं दिलीप गीताराम मस्के, उस दौरान हमारी 8 महार सिकंदराबाद 91 ब्रिगेड 54 डिवीजन के अंतर्गत सिकंदराबाद भोलाराम में थी। हमारी बटालियन को आदेश मिला कि आपकी बटालियन एक एक्सरसाइज पे जाने वाली है, आप इस कार्य के लिए पूरा बटालियन को तैयार करें। अचानक ही जब ये आदेश आया तो हमने उस दौरान में
अपनी उस तरह से तैयारी नहीं कर पाए जिस तरह से एक एक्सरसाइज के लिए तैयारी होती है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म पे हमें आदेश आया। जैसे ही हमें आदेश आया और हमें उसी रात लगभग 7 बजे जो है हमें रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद पे ले जाया गया। वहाँ पे हमारी ट्रेन लोडिंग हो गई और उसी रात हमारी ट्रेन लगभग 15 दिन तक लेफ्ट राइट घूमती रही। एक दिन वह दिन आया जिस दिन हमारी बटालियन को अचानक एक रेलवे स्टेशन पे रोका गया और वहाँ से हमें सीधा एयरपोर्ट ले जा गया और वहाँ से हमें डायरेक्ट पलाली एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया गया। हम जैसे ही पलाली एयरपोर्ट पे चले गए तो श्रीलंका आर्मी ने हमारे स्वागत के लिए खड़ी थी। श्रीलंका आर्मी के कैंप में हमें जगह दी गई, परंतु हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में, श्रीलंका के उस भूगोल के बारे में और उस जगह और एरिया के बारे में बहुत ही अनजान थे। वहाँ का एरिया बहुत ही डेंजर, पूरा जंगली और हमेशा ही बारिश जैसे हालात होते थे। हमने लगभग कुछ दिन उनके कैंप में बिताए। उसके बाद हमने अपना कैंप अलग ही एक नारियल के बगीचे में अपना कैंप लगाया। उस दरमियान गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच में अनेक स्तरों पर बातचीत होती रही। कई बार प्रभाकरण नाम के एलटीटी के लीडर हमारे बटालियन के ऑफिसर मेस में भी आए। इस कार्य के लिए जब हम कर रहे थे उस दौरान हमारी बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया। मैं समझती हूँ कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF में हिस्सा लेना आपके जीवन का एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य रहा होगा। इसमें आम सेना की गतिविधि से क्या अलग था? आपकी ऑपरेशन की क्या मुश्किलातें थे? कुछ दिन बाद अचानक ही हमें आदेश मिला कि आपकी बटालियन को जाफना की तरफ मूव करना है। हमारी बटालियन रात को ही जाफना की तरफ मूव हो गई। लगभग जाफना के पीछे 22 से 25 किलोमीटर पीछे मर्तनामड़म जगह पे हमारी बटालियन पहुंची। वहां पर हमारी बटालियन के ऊपर अनेक जगहों से फायर आया और हमें उस रोड से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा जिस रास्ते पे हमने नहीं जाना चाहिए था, और हमारी बटालियन अनेक जगहों में अलग अलग तरीके से बढ़ गई। परंतु जो कंपनी जिस दिशा में गई वहीं जाके अपने आप को स्टॉप कर दिया और हमारा ब्रिगेड 91 ब्रिगेड मर्तनामड़म में शिफ्ट हो गया और हमारी बटालियन 8 महार राइस मिल में शिफ्ट हो गई। हमारे कंपनी के लोकेशन अलग अलग एरिया में उसी के लगभग पास में ही थे। जब हम इस बात को ऑब्जर्व कर ही रहे थे तो एक दिन अचानक अल्फा कंपनी को जो ये टास्क मिला कि अल्फा कंपनी बटालियन हेडक्वार्टर का संरक्षण करेगी, उसकी पूरा हिफाजत करेगी। उसमें से एक प्लाटून वुडविल गर्ल कॉलेज में जाके वहाँ बैठेगा ताकि ब्रिगेड और यूनिट के बीच में जो आरोपी और अन्य ड्यूटी और ऑपरेशंस के लिए मदद करेगा। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन के साथ काम करते समय आपको उनके बहादुरी और नेतृत्व के बारे में कैसा अनुभव रहा? 25 नवंबर 1987 के उस LTTE मिलिटेंट्स के खिलाफ चले ऑपरेशंस के बारे में विस्तार से बताइए। एक दिन बटालियन क्वार्टर में ऐसी सूचना आई कि एक धर्मलिंगम का हाउस है जो कि कंत्रोडाई एरिया में है। उस घर में भारी मात्रा में बारूद, हथियार और अम्युनिशन उतर रहा है। इसको रोकना होगा वरना ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तुरंत ही हमारे एडजुटेंट साहब और कर्नल BS राठी साहब ने इस पर जो है विचार किया, प्लानिंग की और मेजर परमेश्वरन साहब को यह आदेश दिया कि आप अपने एक प्लाटून नंबर 2 को आदेश दीजिए कि ये क्या बात है, इसके बारे में पता लगाइए। लगभग हम 9:30 10 लोग 10 बजे या 9:30 बजे के करीब हम उस एरिया में गए और हमने उसके ऊपर पता लगाने की कोशिश किया। अचानक हमारे ऊपर रात को वहाँ पे फायर किया और उस एरिया का जायजा लिया तो पता चला कि वहाँ कोई भी हरकत नहीं हुई है। हमने इस हरकत को छोटा ना समझ के इसको बहुत ही बारकाई से लिया और बटालियन क्वार्टर को दोबारा सूचना भेजी कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई चल रही है जिसके तहत वह हमें नुकसान पहुँचा सकते। जब ये बात चली रही थी तब कर्नल BS राठी साहब और एडजुटेंट देवेंद्र सिंह साहब ने हमारे बटालियन के
हित को मद्देनजर रखते हुए हमारे कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर परमेश्वरन साहब को यह आदेश दिया कि अब बटालियन हेडक्वार्टर से 30 जवानों को लेके जाओ और वुडविल गर्ल कॉलेज का एक प्लाटून 2 प्लाटून मिलके उस एरिया के ऊपर जाके पूरा सर्च ऑपरेशन का कार्रवाई करो और तुरंत सूचना दो। लगभग रात के 11:30 से 12 बजे हम वुडविल गर्ल कॉलेज से उस एरिया के लिए मार्च हुए और लगभग 2 से 2:30 बजे हम उस एरिया में पहुंच गए। हमने धर्मलिंगम के हाउस को चारों तरफ से घेर लिया और उसको जो भी वहाँ पे मूवमेंट्स हो रही थी उस पर नज़र रखने लग गए। वहाँ का क्लाइमेट देख के आपको यकीन नहीं होगा, पूरी रात भर बारिश चलते रहा, बिजली कड़कती रही और इतना मौसम खराब था, फिर भी हमारे जवान उस एरिया में डटे रहे। उस दौरान में धर्मलिंगम हाउस के पास एक गैरेज था। उस गैरेज में कुछ एक गाड़ियाँ थी जो खड़ी थी और रात के जब बिजली कड़कती थी तो उससे पता चलता कि ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई हो रही जिसमें गोला बारूद या अन्य विस्फोटक उतारे जा रहे हैं। हम रात भर इंतज़ार करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे हम उस एरिया में जाके पूरा चारों तरफ से धर्मलिंगम के हाउस को घेर लिया और पूरा सर्च किया। लगभग सुबह 7 बजे तक सर्च चला, मगर हमें वहाँ पे ऐसा कोई भी मोमेंट या ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं मिले, जिसके कारण हम वहाँ निराश हो गए और वापस जाने का प्लान किया, रियार किया और वापस जाने के लिए निकल गए। जैसे ही लगभग हम 1 से 2 किलोमीटर पीछे आने के बाद अपने बटालियन की तरफ आ ही रहे थे तो वह रास्ता दुश्मन ने ऐसा चुना था, एक साइड में जंगल था रोड के और दूसरे साइड में पूरा पानी से भरा हुआ तालाब था। जैसे ही हमारी पूरी की पूरी दोनों टीमें उस एरिया में पहुंच गई तो चारों ओर से हमारी ओर जबरदस्त और भारी फायर होने लगा, जिस कारण हमारी पूरी की पूरी दोनों प्लॉटर्स राइट साइड के जंगल में अपने आप को एक कवर करते हुए उसके ऊपर जो है फायर गिराने लग गए। लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ और हमारे जवान उस जंगल के अंदर इतनी दूर तक चले गए जहाँ पे दुश्मन ने इस प्रकार से मोर्चा या इस प्रकार से एम्बुश साइड किया था कि हमको जैसे ही उनके कारगर रेंज में आने देना और उसके बाद अचानक हमारे ऊपर भारी तादाद में फायर करके हम सबको बर्बाद करना। जब जैसे ही ये बात पता चली कि लेफ्ट साइड से चारों ओर से फायर आ रहा है, कैप्टन DR शर्मा साहब ने RL को अपने कंधे पे उठाया, पानी में घुस गए और उन्होंने जहाँ से भी फायर आ रहा है उस पर लगातार गोले दागने लग गए। लेकिन कैप्टन साहब को इतना समय नहीं दिया और उनके ऊपर बहुत भारी तादाद में फायर आ रहा था, जिसके कारण कैप्टन साहब वापस दोबारा जंगल की तरफ आ गए। इसी दौरान हमारे 1-2 जवान जो थे वो शहीद हुए थे और उस दौरान में हमारे एक LMG जो भी हमारे एक सपोर्ट वेपन थे उसके ऊपर नज़दीक से दुश्मन ने फायर करके सपोर्ट वेपन को घायल किया। ये बात मेजर परमेश्वरन साहब के समझ में आई। DR शर्मा साहब का पूरा की पूरा ट्रूप्स जो है अम्बुश साइड में फंस गया है और DR शर्मा साहब के ऊपर भारी तादाद में फायर होके उनको चारों तरफ से घेर लिया है। मेजर साहब ने बिना देरी किए, बिना कुछ किए हुए, बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण देते हुए उन्होंने कुछ लोगों को आदेश दिया कि आप 10 लोग मेरे साथ चलो। उस दौरान में हमने ये चीज़ देखा कि मेजर साहब के साथ हम सिर्फ खाली 6 लोग गए और इसके अलावा कुछ लोग और भी हमारे पीछे आ रहे थे, मगर उनके ऊपर फायर आने के कारण वो लोग वहीं पे रुक गए। जैसे ही DR शर्मा साहब की पार्टी और LTT के पार्टी के बीच में भारी तादाद में फायरिंग हो रही थी, एक दूसरे के साथ में एकदम नज़दीक से बैटल हो रहा था, उसी दौरान में हमने मेजर साहब ने पीछे से काउंटर अटैक किया और नज़दीक से नज़दीक जाके दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में LMG और बाकी राइफल का फायर किया, जिससे दुश्मन के होश उड़ गए। दुश्मन को ये पता चल गया कि हमें इन्होंने घेर लिया है, हमारी बचने की कोई उम्मीद नहीं। उसी दौरान में उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपने वेपन डाउन किए और वहीं से एक सिविलियन बना के भागने लग गए। उसी दौरान जब मेजर साहब ने जब फायर करते हुए इतनी भारी तादाद में देखा तो पेड़ पे बैठा हुआ एक LTT का बंदे ने उनके सीने में गोली मारी।
जैसे ही उनके सीने में गोली लगी तो उनके जेब में जो मिनी फ्लेयर के राउंड थे उस पर आग लग गई। जैसे ही उनके मिनी फ्लेयर में आग लगी तो उन्होंने अपने छाती पे अपना राइट हैंड डाला। जैसे हाथ पे दोबारा एक HMG का राउंड आया और उनके हाथों को चकनाचूर कर दिया। उसी दौरान मेजर साहब के मुंह से यही निकला कि आप पीछे हो जाओ, अपने आप को सेव करो और भारी तादाद में छुपते हुए दुश्मन के ऊपर फायर डालो। जब तक मेजर साहब ने अपने ही हिसाब से उनके ऊपर आखिरी दम तक, जब तक उनकी जान में जान थी, दुश्मन के ऊपर LMG से फायर किया और दुश्मन को जब तक भागने पे मजबूर किया, जिसके कारण हमारी बटालियन की इज्जत बच गई। हमारे बहुत सारे जवान उस दौरान शहीद होते होते बच गए, क्योंकि मेजर साहब द्वारा लिया गया जो डिसीजन था, मेजर साहब द्वारा लिया गया जो कार्य था या जो उनके द्वारा किया हुआ काम था, वो एक सराहनीय काम है। हमें किसी को कोई शक नहीं है। मैं उस बटालियन से मुझे आज भी इतना लगाव है क्योंकि मैं उस बटालियन का एक नुमाइंदा हूँ। मैं मेजर साहब को सत सत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमारी जान बख्श दी और उन्होंने अपने जान को बिना परवाह किए हमारी बटालियन के अनेक वीरों के लिए वो एक बलिदान साबित हुए और उन्होंने हमारे लिए एक वरदान साबित हुए और हमारी जान बचाई। ऐसे वीरों को हम बार बार सलाम करेंगे। मेजर परमेश्वरन साहब एक बहुत ही महान योद्धा थे। उसके कई बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि वो अपने खान पीन से ज़्यादा लड़ाई के दौरान लगने वाले अलाव को, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, अगर कम्युनिकेशन टफ है तो सब कुछ ठप है। इसलिए वो अपने खुद बैग में जो है NPRC 25 के बैग कैरी करते थे। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मिनी फ्लेयर के राउंड वो खुद के साथ में कैरी करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एम्युनिशन लेके चलते थे। लोगों को इस तरह से प्रेरित करते थे कि लोग उनके पीछे आने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मैं परमवीर चक्र विजेता पर मेजर परमेश्वरन साहब को सत सत प्रमाण करता हूँ और मैं उनको भगवान से भी ऊपर एक उनकी मान्यता को समझते हुए मैं उनको बार बार उनके से यही विनती करता हूँ कि ऐसे वीरों का हमारी सेना में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो लोग हैं जो हमारी सेना के मनोबल को बढ़ाते हैं और हमारी सेना को गौरव को बढ़ाते हैं। आज उन्होंने महार रेजिमेंट का और मेरी बटालियन का और मेरे कंपनी का इतना मान सम्मान बढ़ाया कि आज भी लोग उन्हें आदर की नज़र से देखते। मैं कहता हूँ, मैं उनके साथ में एक रेडियो ऑपरेटर था, मैं उनके कंधे के साथ कंधा मिला के लड़ा हूँ और उनके जो एक कर्तव्य थे, उनकी जो ड्यूटी थी, उनका जो काम था, उन्हें इतना बखूबी डुबाया। शायद ही बहुत इंडियन आर्मी के अंदर ऐसे साहिबान अभी आने वाले समय में पैदा होंगे। सर, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। आपकी सेना की सर्विस कैसी रही? मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरा गांव बीड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र में है। मैं बहुत ही ऐसे एरिया से आता हूं जिस एरिया में फौज का बहुत ही कम लोग जाता है। मैं जब बचपन में अपनी क्लास 4वीं तक की पढ़ाई अपने पैतृक गांव करने के बाद मैं बीड जैसे शहर में आगे की पढ़ाई के लिए चला गया। मैं एक बॉयज़ हॉस्टल में अपना जीवन 11वीं तक बिताया। जब मुझे 11वीं में था तब एक सैनिक, एक हवलदार जी जो कि औरंगाबाद से हमारे बीड में एक NCC की परेड लेने के लिए आते थे। जब वो परेड लेते थे, उनका टर्नआउट, उनकी आवाज़, उनकी बातचीत और उनका वो जज्बा देख के मेरे मन ही मन में मैं सोचने लगा, मैं क्यों नहीं फौजी बन सकता हूँ। परंतु ना आज तक मेरे परिवार में कोई फौजी हुआ है, ना होने की संभावना है। इन सब हालातों को देखते हुए मुझे फौज के बारे में किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं। लेकिन अचानक एक दिन 28 मई 1985 को बीड डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन भर्ती का ऐलान हुआ, जिसके अंतर्गत मैंने पहले ही बार भर्ती में हिस्सा लिया और उसमें एक अव्वल बन के मैं सेना में भर्ती हो गया। मुझे पता नहीं था, मुझे इतना ही पता था कि मैं भारतीय सेना के में भर्ती हो रहा हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे एक महार रेजिमेंट जैसी पलटन में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद एक महार हूँ और योद्धा हूँ। जब मैं अपने पलटन
MRC में चला गया, महार रेजिमेंट में चला गया, तो मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग बहुत ही उम्दा दर्जे से पूरी किया। जो भी लड़ाई में आने वाले काम थे उसमें मैं हमेशा माहिर रहा। और आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं रिक्रूट पास आउट हुआ तब मुझे उस दौरान मैं पूरे प्लाटून में 4 अवार्ड्स अपने नाम किए थे। उसमें सबसे पहले बेस्ट इन बैनेट, बेस्ट इन ड्रिल, बेस्ट इन फायरिंग और बेस्ट इन फिजिकल फिटनेस जैसे अवार्ड में मेरा नाम लिखा। मुझे अपने आप में, अपने परिवार पे और अपने बच्चों पे बहुत अधिक गर्व है। मैं अपने यूनिट का हीरो हूँ, इसका कारण भी मेरा परिवार है। मुझे आज तक बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें श्रीलंका में मुझे मेंटेनेंस डिस्पैच से अवार्ड से नवाजा गया था। जब हम जम्मू कश्मीर में कालाकोट एरिया में थे तब मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड से नवाजा गया है। और जब मैं 2012 में छत्तीसगढ़ में सिविक एक्शन टीम के साथ काम कर रहा था, उस दौरान लोगों के साथ तालमेल और उनके कामकाज में ध्यान देने के लिए मुझे वहाँ पे भी आर्मी कमांडर साहब द्वारा मेंटेनेंस डिस्पैच से नवाजा गया है। मैंने अपने घातक प्लाटून को इस तरह से सींचा, आज मेरा हर एक घातक का जवान 2-2 स्टार लगा के पलटन के अंदर घूम रहा है आज, इसलिए सब लोग मुझे आज याद करते हैं। फिलहाल मैं एक भारत की नामांकित कंपनी इन्फोसिस आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जो कि पूना में स्थित है, जिसमें मैं एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के कंपनी पेरोल पे काम कर रहा हूँ। आज मेरा बेटा इन्फोसिस के अंदर प्रोसेसिंग इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, जबकि मेरी छोटी बेटी MBBS की पढ़ाई पूरी करके अभी वो इंटर्नशिप कोल्हापुर में कर रही है। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपकी वीरता, कर्तव्य, परायणता वाकई काबिले तारीफ है और मेजर परमेश्वरन की परमवीर चक्र प्राप्त करने की कहानी सुना वास्तव में उत्साहजनक था। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। In the next episode, we shall witness and relive another glorious and nerve-wrenching story of the Paramveer Chakra awardee. Tune in to Paramveer Chakra Gatha and be inspired by tales of courage, sacrifice and heroism that define the essence of the human spirit. Goodbye. परमवीर चक्र गाथा, साहस और बलिदान की कहानी गाथा की जुबानी।